अगर पहले 7 या 10 घंटों में हमने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा तो सारे के सारे गायब हो सकते हैं। तुम विक्टिम की उम्र के सबसे करीब हो। उसकी फैमिली को जरूरत है कि ऐसी किसी इंसान के साथ रहे जिससे वो रिलेट कर सके। Madam sir, I'm not sure if I'm... You can. If she was my girlfriend, I would have died for her. We've been ordered to blow the police apart. What? Yes, ma'am. It's about our political masters covering their own hides. But there are greater powers at play. You're saying that if you'd done your job, none of this would have happened in the first place. There is nothing we could have done. So everyone in the city is wrong. एक माँ से एक माँ की रिक्वेस्ट प्रॉमिस कीजिए मुझे उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी। I promise. Hello everyone, welcome back to my channel, that is Posh the Josh. So as you can see by the title itself, today's topic will be on a very sensitive topic, but हाँ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एक बहुत इंस्पिरेशनल लेडी जिनका नाम है छाया शर्मा। हम उनके बारे में बात करेंगे एंड हाउ शी हैड ट्राइड हर लेवल बेस्ट इन द निर्भया केस टू गेट ऑल द परपेट्रेटर्स ऑन बोर्ड एंड बिफोर द कोर्ट। एंड उन्होंने वो कैसे किया, क्या किया, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। सी उन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी एंड ऑल्सो देयर वाज अ वेब सीरीज विच was made on how she had took all those accused behind the bars and उसका नाम है दिल्ली क्राइम which was released on Netflix and प्लीज अगर आप लोगों ने वो मूवी और वी कैन से वेब सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी दैट। इट इज़ वेरी हार्ड टू सी ऑल द एपिसोड्स बिकॉज इट रियली मेक यू इमोशनल as especially if you are a woman and you can relate with that web series and जो भी उसमें बताया है एक एक चीज़ें जो उसमें दर्शाया गया है it was all true and it was taken the permission of Chaya Sharma, IPS Chaya Sharma, on her life regarding this incident and how she received a call from the uh, police station and how she rushed on to find for the perpetrators and how she had able to in a very less span of time उन्होंने बहुत कम समय में उन perpetrators को जो है वो पकड़ लिया था। तो क्या स्टोरी है उसके पीछे ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे and for more detailings you can even watch the web series on Netflix that is the Delhi Crime. Okay, so it was season 1 तो आप लोग प्लीज देखिए। इट वॉज डायरेक्टेड बाय रिचर्ड मेहता एंड उन्होंने पूरा बकायदा ये इंटरव्यू एंड पूरा स्टोरी जानी थी इस इंसिडेंट इस केस के पीछे की विथ छाया शर्मा एंड शी हैड ऑलरेडी रिक्वेस्टेड मिस्टर मेहता टू पुट ऑल द फैक्ट्स विच इज रिलेटेड with the incident actually because usually क्या होता है एंटरटेनमेंट की पर्पस से अक्सर हम कुछ ऐसी चीजें भी डाल देते हैं which is not that relevant but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस केस में। each and everything right from the starting to the end everything was displayed and portrayed in a very beautiful way the way the case was। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं छाया शर्मा जी की कि what was her journey and how it began। So, Chaya Sharma, an officer of the Indian Police Service belonging to the Egmont cadre, is currently serving as Joint Commissioner of Police of Eastern Range, Delhi, and has previously served as Joint Commissioner of Police Economic Offences Wing (EOW) Delhi. She has also served as Deputy Inspector General (DIG) at the National Human Rights Commission, that is NHRC, India. The investigation of the infamous Nirbhaya gang rape and murder case in December 2012, New Delhi, that brought out her professional acumen and tested her undaunting spirit and ability to lead. तो ना सिर्फ ये केस ऐसा था जिसने पूरे नेशन को शुक किया बट ऑल्सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर छाया शर्मा एज वेल टू क्रैक दिस वन क्योंकि एक तो उन लोगों को इतने जल्दी
विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 3 और 6 डेज के अंदर अंदर उन सबको ढूंढ के निकालना था। एंड ये क्राइम के बाद कोई कहाँ चला गया था, कोई कहाँ चला गया था, तो सबको इकट्ठा लाना। ये केस की जो डिटेलिंग है, क्योंकि ये केस इतना इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया था, पूरा फैल गया था कि बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो बीन मेंशन कि उनके साथ जो निर्भया के साथ जो उनके फ्रेंड थे जो ट्रेवल कर रहे थे, ही वॉज नॉट फेंटेड, ही वॉज अनकॉन्शियसली लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ दैट बस, एंड वो सब इंसिडेंट होते हुए उन्होंने देखा। अभी ये क्या है क्या नहीं, ये मैं आपको अभी आज के वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो जो है वो इट्स ओनली डेडिकेटेड टू द वर्क एंड द अचीवमेंट्स ऑफ छाया शर्मा. We will be definitely making a separate video. I will be making a separate video on it, wherein I will be explaining you all the detailing of the case और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. डेफिनेटली ये मैं कहूँगी कि कोर्ट तक लेके आने की जो जर्नी थी छाया शर्मा की, जितना वो उनके हाथ में था, एज पर हर जॉब शी हैड डन इट वेरी 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 ब्यूटिफुली. लेकिन बाद में जो जस्टिस जो लॉफुली मिला है गया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिले हुआ है. एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है. जो एक परपेट्रेटर था जिसने जो क्राइम किया था, मुकेश सिंह, उसका इंटरव्यू लिया गया था बीबीसी के थ्रू, जहाँ पे वो बहुत ही शेमफुली अपना जो गुनाह है कबूल कर रहा है. ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ व्हाट ही हैड कमिटेड. यहाँ पे मैं उसका एक शॉर्ट क्लिप डालने वाली हूँ, शॉर्ट क्लिप लेस देन 1 मिनट. जस्ट सी, ही इज़ द रियल परपेट्रेटर. ये कोई उसका जो बोल सकते हैं कोई और नहीं था जिसने उसका रोल प्ले किया है इस क्लिप में. ही इज द वन हु हैड एक्चुअली डन दैट, एंड ही वाज गिवन अ सर्टेन अमाउंट टू बी इंटरव्यूड. तो आई डोंट नो कि क्यों किया जाता है ऐसा, आपको क्या जरूरत है ऐसे लोगों की इंटरव्यू लेने की. एंड ही इज सो शेमफुली एडमिटिंग व्हाट ही हैड डन. तो मैं आपको इसके बाद थोड़ा छोटा सा क्लिप डाल रही हूँ, प्लीज इसको देखिए. एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है. ये चीज़ देखी जाए. अगर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है. लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा. तो देखा आप लोगों ने किस तरह से मैं इसके ऊपर आई थिंक मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. Yes, moving ahead, the investigation, after the investigation, as a head of special investigation team, she closely supervised all aspects of investigation of this blind case, because there was no evidence actually, क्योंकि सब भाग गए थे, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था. There was only one witness who can give her statement and was निर्भया. निर्भया ही अपने केस में एक ऐसी लेडी थी, एक ऐसी लड़की थी जिसने खुद के लिए ही वो बोली, एंड उसने एक तरह से ना खुद को ही जस्टिस दिलाया. शी वॉज नो मोर आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर अ मंथ और आफ्टर सम वीक्स, बट शी वॉज द वन हु एक्चुअली, बिकॉज ऑफ हर ओरल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसको हम ओरल डॉक्यूमेंट को भी एक तरह का एविडेंस माना जाता है. जब उसका रिकॉर्डिंग ले रहे थे, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ले रहे थे, एट दैट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट अगर वो नहीं होता तो शायद उनको जस्टिस नहीं मिल पाता. तो कहीं ना कहीं शी इज proved to be helpful for herself here. So Chaya not only stood as an unwavering shield for her team, insulating them from mounting pressures which led to quick apprehension of the perpetrators, but also kept the focus on collection of scientific evidence and meticulous preparation of documentation, and used odontology for analysis of bite marks as evidence for the first time. क्योंकि बहुत सारे bite marks थे victim की body पे, and this was the first case which says that कि intestine को pull किया गया था. intestine भी नहीं बचा था उस लड़की के अंदर. The first charge sheet filed in record 18 days which withstood various stages of judicial scrutiny, resulting in conviction with maximum punishment. छाया शर्मा received a call shortly. ये इंसिडेंट के बारे में बता रही हूँ. जब उनको कॉल मिला था,
16 दिसंबर को मिडनाइट को 2 बजे के करीब ऑन December 16, 2012 she responded immediately. The brutal fatal gang rape of a 23-year-old student and assault on her male friend shook India to its core, inciting large-scale protest against the gruesome nature of the crime together with a demand for justice for the victims. But the gang rape was different, unusual, and insane. With no witnesses at all except the victims of the brutal crime, it was a challenge to identify and trace the criminals. सो बहुत ही मुश्किल था ऐसे केस को. यूजुअली ऐसे केस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, जहाँ पे खुद एक विक्टिम ही एक विटनेस बन के आपके सामने आए. एंड खास करके तब जब इतना हीनियस क्राइम हुआ है, आई रियली रियली सैल्यूट दैट गर्ल एंड हर फैमिली, स्पेशली हर मदर हु स्टूड फॉर हर टिल द एंड. एंड अभी भी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिग्रेट होता है, क्योंकि वो जुविनल जो है, he had not received the proper that punishment which he should get. But ठीक है, we cannot say anything, we just say that हम करेंगे, हम अवेयरनेस करेंगे. देखते हैं कब तक लॉज जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, स्ट्रिंजेंट नहीं होते ऐसे लोगों के लिए. Then let's move on to her achievements. These are some of her achievements, rather despite of what she had done in that Nirbhaya case. So one of her cases also find mention in UNODC's compendium on best practices on human trafficking by law enforcement agencies in 2007. Her mission against trafficking continues in NHRC as well, wherein she had played a critical role in drafting standard operating procedures and, which is also known as SOPs, and guidelines to combat trafficking of persons in India in 2017. So when I'm talking about trafficking of persons in India in 2017 means ना सिर्फ वुमेन ट्रैफिकिंग और ना सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बल्कि पर्सन्स बोलेंगे तो सब इंक्लूड होते हैं. ट्रैफिकिंग मतलब क्या? ट्रैफिकिंग यानी कि एक तरह से किडनैप करके उनको इधर बेचना उधर बेचना, ट्रैफिक सिग्नल पे बोलना, भिखारी बन के मांगना, एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया. शी हैड ऑल्सो played a critical role in drafting all those SOPs, that is standard operating procedures. Then she had even won 2 special duty medals for her services in remote and insurgency affected areas in the northeast of India in 2004 and 2015, and has also been awarded the President's Police Medal for meritorious service in 2015. Because इतना अच्छा काम करना, हम हमेशा अक्सर भूल जाते हैं ऐसे लोगों को थैंक यू करना. बट through my video, I got this opportunity to thank all the police officers, all such police officers. I'll not say I'm not say that I only the group of police officers, but to all the police officers and to all the soldiers who fight for us and जो behind the picture रहते हैं, limelight में नहीं आते, लेकिन actually वो हमारे real heroes हैं. तो thank you so much for all of you to take care of us and take care of our safety. बस ये भी है कि we know कि certain obligations भी हैं आप लोगों के ऊपर, जहाँ पे काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पाते. बट वी होप कि आने वाले टाइम में कुछ बहुत अच्छी सारी चीज़ें हो, बदलाव हो, एंड येस वुमेन सेफ्टी और अच्छे से निकल कर आए. एंड येस दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, देन डू सब्सक्राइब इट फॉर नोइंग मोर नोटिफिकेशंस ऑन सच वीडियोज़, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉश एंड वुमेन सेफ्टी मेजर्स पे वीडियो मिलने वाले हैं. तो अगर आप वुमेन सेफ्टी चाहते हैं या आप वुमेन सेफ्टी के टॉपिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, विच इज़ अ ट्रेंडिंग टॉपिक nowadays and which should be also not only the trending topic but a very serious and a sensitive topic, so do be a part of my channel and thank you so much.